Thank you very much. Now, geometry is also a very important part, but it is from class 4 point of view. So now, in geometry, the student should be clearly told the point, line segment, line and ray. If you remember my this lecture of class 1, introductory lecture of class 2, I mentioned that there are certain symbols the student should remember. Circle, point, line, half circle, vertically, horizontally. This I am going to use it here. Just say, what is the meaning of point? Point tells the exact location and denoted by English capital letters. That is very, very important. Example, this is a point, it should be capital A, not small a. All the point should be mentioned by the capital A. Line segment, very important. It is the shortest distance between the 2 points, which is a straight line. Just see. It is denoted by AB. Start from A, goes up to B, and a line over this. No direction. Then comes line. It is an endless path between 2 points, line segment. Or this is extended in the left and right with the arrow. It is denoted by this. This is the line, only line. Line segment, line is different. In line segment, no arrow, but in line, arrow at both ends because it's endless distance. Ray. In ray, there should be only one direction arrow like this. Why? Because if rays are coming from the sun, so it is one arrow is denoted, not 2 arrows. Just say, measuring scale, here it is important. It is used to measure the distance. So what are these things? अब देखिए, measuring scale I want to just show you like this. ये देखिए आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा और ये कंपास दिखाई देगा यहाँ पर जो है। और ये आपका यहाँ पर ये स्केल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पर देखिएगा, व्हेन आई वाज ड्राइंग द नंबर लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 1 टू टिल नाउ, आप देखिएगा 0 से लेकर के आप 17 तक यहाँ बनाया गया है, बट यू कैन गो अप टू 100 डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। बट जस्ट सी 0 line is larger, 1 line is larger, 2 line is larger, but 1 and 2 is smaller than this line, and further it is divided into 5 parts. So this is 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter, and 1 centimeter has further been divided into 10 parts, which is mm. So from 0 to 1 centimeter, and from 0 to 1 it is 10 mm. So because of that, it is always written 1 centimeter is equal to 10 mm. Further, compass, very important. अब देखिए इसको जो है, नहीं सॉरी इट इज, इसको हम कट कर देते हैं। कंपास इज दिस, दिस इज ए कंपास। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिए कंपास में देखिए, जब हमने सर्किल बनाया था इस तरह से, और आई जस्ट ड्रॉन दिस इज ए डायमीटर, so this becomes half circle. और फिर जब आप ये आपका जो है रिफरेंस लाइन होता है, रिफरेंस लाइन। अब देखिए इसमें ये रिफरेंस लाइन है जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये रिफरेंस लाइन है। और जनरली एंगल इज मेजर फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहां से यहां तक घुमा के लाएंगे और यहां पर आ जाएंगे तो ये 90 डिग्री है जो है जनरली। और इसको अगर आप फुट देखिए, अभी आप देखेंगे ना 0, 10, इनर वाला जो है एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है जो है। अब देखिए अगर 45 करना है
तो यहाँ पर 40 है, फिर यहाँ पर 45 है जो है, तो ये 1/4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जाएगा तो ये हाफ हो जाएगा, 90 डिग्री, मैंने 1/4 इसका हो जाएगा। देखिए इसका 1/4 हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ये 360 डिग्री है। डिग्री लिखा नहीं है लेकिन यूनिट है। अब यहां से यहां तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री है, और फिर इसको नीचे लाएंगे तो 270, फिर इसको लाएंगे तो 360। सो सर्किल हैज 360 एंगल, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। जो है यहां से शुरू होता है और यहां पर अंदर होता है, ये 360 डिग्री है। ये आपका जो है 90 डिग्री है यहां से यहां तक, लेकिन अगर इसको यहां से यहां तक खींचेंगे तो ये 180 डिग्री है। इसको कंपास बोलते हैं। सो एंगल का डिफिनेशन क्या होगा, एंगल्स आर जनरली मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम 0 to 180। अब एंगल को डिफाइन कैसे करेंगे, लाइन सेगमेंट याद है, फ्रॉम ए पॉइंट टू लाइन सेगमेंट व्हेन कट इट मेक्स एन एंगल। जैसे आपका जो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो ये आपका एंगल हो जाएगा। सो दैट इज हाउ आई हैव जस्ट गिवन फॉर दिस वन। सो नेक्स्ट, अब इसको मैं मिट कैंसिल कर देता हूं, कैंसिल कर देता हूं। अब देखिए, अब शेप्स देखिए क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो शेप, क्योंकि शेप और पैटर्न भी आएगा आपका। तो शेप क्या है, लाइन सेगमेंट इज मोस्टली यूज्ड टू ड्रा द डिफरेंट शेप लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पॉलीगन विद हेल्प ऑफ मेजरिंग स्केल। जनरली ऑल शेप्स आर पॉलीगन, मैंने आपको जो सभी शेप को पॉलीगन, रेक्टिलिनियर जो बोलते हैं, सभी शेप पॉलीनॉमियल है, नाम अलग अलग है। जैसे अब ट्रायंगल में देखिए 3 sides, total angle is 180, but here it seems to be equal side, but can be different sides also, length. Square, sides is parallel and equal. Rectangle, sides are parallel and unequal. This is sides are not parallel and not equal also, मैंने unequal हमने कह दिया है। ये क्वाड्रिलेटरल इसका नाम है, ध्यान रख ले। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4, क्वार्टर, 1/4 को क्वार्टर भी कहा जाता है, इसका मतलब 4 साइड होना चाहिए। ट्रायंगल का मतलब 3 साइड होना चाहिए। लेकिन पेंटागन में जाएंगे तो 5, हेक्सागन में जाएंगे तो 6, हेप्टागन में जाएंगे तो 7। तो अब देखिए सब पर लिखा हुआ है साइड्स कितने हैं। यहाँ पर साइड्स 5 है, टोटल एंगल 540 है, साइड 6 है, टोटल एंगल 720 है, साइड 7 है, टोटल एंगल 900। क्लास 4 में these angles are not given, but I have given so that in future they can use it. But ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एंगल डिफाइन करते समय यहाँ पे एंगल ए बी सी 3 एंगल है 180, 4 एंगल है 360। अब इसे यहाँ पर हम कहते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू, ये एंगल डी होना चाहिए, एंगल डी, ये एंगल डी इज इक्वल टू 360। ये आपका 360, यहाँ पर 540, यहाँ पर 720, यहाँ पर 900। इट विल गिव द एडिशनल नॉलेज। अब यहाँ देखिए, अब एंगल को मैंने डिफाइन किया है। द एंगल इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द 2 लाइन सेगमेंट आर रोटेटिंग ए लाइन सेगमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज। आई हैव शोन इन ए कंपास एग्जांपल। कर्वलिनियर, it is a larger length in a comparison with the line segment, but curved, larger in length। ये ध्यान रखिएगा। अब ये लेंथ जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से लंबा है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दिस इज द शॉर्ट डिस्टेंस, और ये लॉन्ग डिस्टेंस है। इट इज ए लॉन्गर लेंथ इन कंपेरिजन विद द लाइन सेगमेंट। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्लोज लूप क्या होता है, क्लोज लूप लाइन सेगमेंट,
In this case, 2 points met at a single point A on loop's curved line at a fixed known as a center. अब देखिए 2 पॉइंट्स में स्टार्ट यहां से होगा, यहीं पे आके मिल जाएगा, तो इसका मीनिंग ये है 2 पॉइंट्स मेट एट ए सिंगल पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, ए पे मिल गया. अब आए सर्किल. इट इज ए क्लोज लूप फिगर बट ईच पॉइंट्स ऑन द लूप कर्व लाइन इज एट ए फिक्स डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वन सिंगल पॉइंट ओ है, ये भी आर डिस्टेंस, ये भी आर डिस्टेंस, सभी, और इसको ज्वाइन कर दिया गया है, उस सर्किल हो गया है. और ये आर डिस्टेंस होता है, रेडियस होता है. और डायमीटर क्या होता है? डायमीटर, इफ द 2 पॉइंट्स passes through the origin, 2 points line segment passes through the center, it is called diameter. But if 2 points line segment does not pass through the center, it is called chord. Chord is always less than diameter. ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. और फार्मूला इसका जो है, हम शायद मोस्ट प्रॉब्ली आगे बताएंगे आपका फार्मूला क्या होगा. अब देखिए यहां पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत सिंपल चीजें हैं जो है. अब देखिए ए हैज ओनली 1 पॉइंट. ए मतलब क्या? पॉइंट हैज ओनली 1 पॉइंट. ए लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट. ए बी रिप्रेजेंट द लाइन सेगमेंट. ए बी रिप्रेजेंट रे. दिस रिप्रेजेंट ओनली लाइन लेंथ. अब देख क्वेश्चन, काउंट वर्टेक्स एंड लाइन सेगमेंट. अब इसमें वर्टेक्स कितने हैं? 1 2 3 4. लाइन सेगमेंट कितना है? 1 2 3 4 5 6. इस तरह से आपको सब में आंसर देना है. फाइंड द रेडियस. अब देखिए यहां पर क्या हमने क्या है, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2, और यू कैन आल्सो से डायमीटर इज इक्वल टू 2 into radius, 2r, anything. So sometimes radius is given, sometimes diameter is given. If diameter is given, radius has been asked, you have to divide. Radius is given, you have to multiply with 2, make it diameter. Thank you very much.